Hello everyone, welcome to Pro Trainees demo session on tendering. I am Arsha, your host for today's session. Let me give you a brief introduction about who we are. Pro Trainees is an NSR CEL IIM Bangalore pre-incubated edtech startup. We are registered with Startup India, Startup Odisha, and OSF. Landing skill requisites which precisely fit market demand is tougher than landing a job itself. That's where we come into play. We prepare engineering students to be industry ready by training them for the essentials required in the field. We believe that skill building is an extensive process which requires detailed and practical knowledge with the help of our experienced experts. Our only aim is to build skilled workforce for the civil engineering. Our only aim is to build skilled workforce for the civil engineering industry and to create thought leaders of tomorrow. ProTrainee brings to you an involving industry-ready environment to tackle the ever-shifting business scenario. As an educational platform creator, we upskill civil engineers in technical domain and tech and trends, from theoretical concepts like structural engineering, bridge engineering, to software trainings like Oracle, Primavera, ETABS, AutoCAD. We offer 360-degree holistic development required for a civil engineering to become a skilled industry professional. We recently conducted an industry-ready long course on tendering, billing, Primavera, highway engineering, and etc. And a good results in these sessions has motivated us to go beyond our boundaries and get more for all of you. To be updated with our upcoming courses, go and follow our Instagram, Facebook, and LinkedIn page by the name Pro Trainee. Now I would like to introduce our expert Mr. Anshit sir, who have joined our forces to make everyone industry ready. Now I request sir to start the session. Thank you. Good evening, everyone. My name is Anshit Gupta. Well, first of all, welcome to the demo session for tendering, bidding, and contracts. I'll just start sharing my screen now. I would just like to say that I'll request everyone to keep yourself on mute throughout the session, as well as not to start your video or audio in between. You will get enough chance to ask doubts in the end of the session. 15-20 minutes will be keeping only for doubt classes itself. Yeah. So the course that we are going to take is going to cover three topics: tendering, bidding contracts, and claims. Okay, all these things are related to each other, but are quite different also. I'll be making you understand all these topics in this demo session. The classes that we are going to take is going to be of 21 days, 1 hour daily. I'm going to take those sessions. So just a small introduction about myself first. My name is Anshit Gupta. I have completed civil engineering and then advanced construction management from NICMAR Pune. After that, I have worked in Shapurji Palanji and Company Private Limited as project planning and operations deputy manager for 3.5 years. After that, I have quit my job and started my own construction company. Since last 2 years, I have been running my own construction firm. And parallel to that, I have been taking various sessions for various subjects throughout the tenure of my last 2 years with Pro Trainee. So first of all, we have taken 4-5 batches for tendering, bidding, and contracts. Then Microsoft Project MSP, which is a planning software that I think we have finished 6 batches up till now. Then we have taken various courses on risk management, materials management, quality, that is quality assurance and quality control, and safety at site. All these topics, different sessions I've been taking with Pro Trainee. So now first I'll take you through what topics I'm going to cover in these 21 days before starting the demo session. Then आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक्स क्या क्या मैं अगले 21 डेज में बताने वाला हूँ, वो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा पहले. फिर हम उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ब्रीफ में जितना हम समझ सकते हैं एक दिन में, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है. इट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इन वन डे. थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट एट द एंड प्रैक्टिकली आई विल डिस्कस विद यू कि ये क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, क्यों मेरा सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग करके या उसमें एमटेक करके मेरी लाइफ नहीं चल सकती, क्यों मुझे आगे दूसरी चीजें पढ़ना ज्यादा जरूरी है जो प्रैक्टिकली मुझे मेरे
कंपनी से, साइट से, कॉन्ट्रैक्टर्स से, सब चीज से रिलेट करती हैं मोर देन व्हाट वी हैव स्टडीड इन सिविल इंजीनियरिंग। सो क्यों हमें टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने की जरूरत है, या क्यों हम लोगों को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के सिलेबस में 6 मंथ्स तक टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाया जाता है, कैसे वो मैंने अपने प्रैक्टिकल जॉब लाइफ में इम्प्लीकेट किया, या इवन मैं मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसे उस चीज का भी यूज कर रहा हूँ, वो सारी चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो फर्स्ट क्या क्या हम 21 डेज में कवर करने वाले हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला हो गया टेंडरिंग बिडिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लेम्स। तो सबसे फर्स्ट जो उसमें टेंडरिंग एंड बिडिंग है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस कि व्हाट इज टेंडरिंग, क्या होता है टेंडरिंग, क्या होता है टेंडर, क्या होता है बिड, क्या होता है बिड, कैसे भरी जाती है, ऑल दोज थिंग्स हम देखेंगे। फिर पूरी कंप्लीट टेंडरिंग प्रोसेस, मतलब जो हम पेपर में एडवर्टाइज देखते हैं, जो गवर्नमेंट ओएनजीसी, एनटीपीसी एंड एनएचएआई, इनके टेंडर के नोटिस निकलते हैं पेपर में, वहां से लेके सबसे लास्ट तक पूरा रेट एनालिसिस करके सबसे लास्ट डे तक, आपको जब तक टेंडर अलॉट नहीं हो जाता है और उसके बाद काम कैसे स्टार्ट करें, वो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है 6 मंथ्स का, वो पूरा टेंडरिंग की प्रोसेस होती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम पूरी टेंडरिंग प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला होता है इन्विटेशन टू बिड, देन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स, लैंग्वेज ऑफ टेंडर, स्कोप ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, बिड फॉर्म एंड प्राइस शेड्यूल, बिडर्स की क्वालिफिकेशन, जो अगर आपको किसी भी, आप कोई भी टेंडर ऐसे ही नहीं भर सकते, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कौन सा टेंडर भरने के लिए। बिड सिक्योरिटी, क्या होता है बिड वैलिडिटी पीरियड, कॉन्ट्रैक्टर्स बिड, देन आपकी जब सारी सब 50 कॉन्ट्रैक्टर बिड कर देते हैं, देन हाउ द क्लाइंट, मे बी गवर्नमेंट क्लाइंट और अ प्राइवेट क्लाइंट, वो कैसे इवेल्युएट करते हैं कि मैं किसको काम अलॉट करूं। ठीक है, तो जो बिड एवेल्युएशन होता है उसके क्या क्या टेक्निकल एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइजेशन, फिर कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो जाने के बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, व्हाट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज लेटर ऑफ इंटेंट, एंड फाइनली द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक, पेपर में ऐड आने से, ये पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे टेंडरिंग एंड बिडिंग का। फिर इसके बीच में कुछ कुछ चीजें काफी डिटेल में आएंगी, ये तो मैंने एक ब्रीफ में आपको सिर्फ नाम बताए हैं अभी। देन हम इसमें डिटेल में जाते हैं, तो क्या क्या मेथड्स होती हैं बिडिंग की जो अलग अलग कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, चाहे वो हमारी कंपनीज हो जिनमें हम जॉब करते हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हो। एक होता है सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप, एक होता है सिंगल स्टेज टू एनवेलप, एक होता है टू स्टेज सिंगल एनवेलप, एक होता है टू स्टेज टू एनवेलप, एंड एक होता है प्री क्वालिफिकेशन। ये 5 मेथड्स होती हैं बिडिंग की, इनको हम समझेंगे। देन अब ये सारे, ये तो हमने पेपर वर्क समझ लिया। अब इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अब ई टेंडरिंग होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन ही टेंडर नोटिस निकलते हैं, ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं। ये तो आपने डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग समझ लिया कि क्या क्या होता है। अब पेपर प्रोसेस के अलावा आजकल 80% टेंडर्स में सब कुछ ऑनलाइन चलता है, ई टेंडर्स की वेबसाइट पे चलता है, एनएचएआई की अलग वेबसाइट है, सब सब ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग वेबसाइट है। चाहे आपकी आपकी लोकल कोई सिटी की नगर निगम हो, या आपका पीडब्ल्यूडी हो, या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो, यहाँ बैठ के मुझे ऑस्ट्रेलिया का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बिड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अडानी पावर। ठीक है, अडानी पावर अभी फिलहाल बहुत सारे बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, हम यहाँ से बैठ के एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स। तो इन लोगों ने बिडिंग सीखा, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे बिडिंग होती है, तब रिलायंस अडानी वो कर पाए। हर बड़ी कंपनी की एक बिडिंग की कॉन्ट्रैक्ट्स की टीम होती है जो ये सारा काम संभालती है। वेदर हमें वो प्रोफाइल को टारगेट करना है, या फिर हमें हमारा वो सारी चीजें टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर्ड होती है। तो अब जो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, हम ई टेंडरिंग भी देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है ई टेंडरिंग के, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे मिलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे कंप्लीट ई टेंडरिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये हम देखेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी केस स्टडीज पैरेलली देखते रहेंगे, टेंडर फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स देखेंगे, टेंडर फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर्स, ये सारी चीजें हम लोग पैरेलली देखते रहेंगे। ये टेंडरिंग का एक छोटा सा पार्ट हो गया। फिर थोड़ा सा हम इसको, ऑब्वियसली हम इतना डिटेल में क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड रेट एनालिसिस में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगेन रेट एनालिसिस एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन अपने आप में एक 30-35 डेज का कोर्स होता है। हम सिर्फ उतना बेसिक बेसिक में इसको 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे जितना टेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली हमने अगर सिविल इंजीनियरिंग करी है, दैट मीन्स हमें क्वांटिटी एस्टिमेशन एज वेल एज रेट एनालिसिस आना ही चाहिए। तो उसमें हम बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए, जितना टेंडर भरने के पर्सपेक्टिव से आपको रेट एनालिसिस करना आना चाहिए, उतना हम 1-2-1.5 सेशन में देखेंगे। बेसिक्स ऑफ क्वांटिटी सर्विंग,
estimation and rate analysis with considering all. अब सबसे पहले जब कोई टेंडर भरता है तो उसे क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना पकड़ना पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे टेंडर भरने के पर्सपेक्टिव से। मटेरियल का एक्सकेलेशन क्लॉज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट क्या होता है टेंडर में अप्लाई करने के लिए, ऑल दोस थिंग्स हम लोग रेट एनालिसिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। उससे ज्यादा डिटेल में हम लोग इसमें नहीं जा पाएंगे। देन अब जनरल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट अथॉरिटीज फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेंडर्स। सो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे 21 डेज में से। आई थिंक इट विल टेक 8 to 9 सेशंस। टेंडरिंग बिडिंग हो गया एंड ई टेंडरिंग हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब आपको कोई भी टेंडर भरना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं भरने जा रहा हूँ। इंडिया में अराउंड 14-15 टाइप के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशंस अलग होती हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाले पे इम्प्लीकेशन अलग होता है, काम देने वाले पे इम्प्लीकेशन अलग होता है। कोई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत टफ है, कोई क्लाइंट के लिए बहुत टफ है। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कोई भी टेंडर भरने से पहले कि मैं किस चीज में डूबने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ से मैं प्रॉफिट कमाने के सपने देख रहा हूँ, कौन सा काम मैं ले रहा हूँ। मुझे उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्टडी करना आना चाहिए, तब मैं टेंडरिंग है ये मुझे समझने से कोई यूज है। तो अब हमारा 50% क्लास चलेगा कॉन्ट्रैक्ट्स पे। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑफर एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंजीनियर के लिए जानना। जनरल एंड स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है एक 1872 का जिसके 75 क्लॉजेज हैं, उन सारे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। कंसिडरेशन, parties involved in a contract, what is letter of intent, what is letter of acceptance, who is a promisor, who is a promisee, what is a voidable contract, what is void contract. देन बहुत सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, इरेक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, ये भी हम सारी डिस्कस करेंगे। ये हमारे सेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो टाइप होते हैं। एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये मोस्टली आपने कभी ना कभी अपने इंटर्नशिप में या ट्रेनिंग में या जॉब में एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सबसे कॉमन फॉर्म है इंडिया में। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। देन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, ईपीसी देखेंगे, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, टर्नकी एंड डिजाइन बिल्ड देखेंगे, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट देखेंगे, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल देखेंगे। इन ईपीसी के 10-12 मॉडिफिकेशन चलते हैं इंडिया में, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। देन कॉस्ट प्लस परसेंटेज फी, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी, गारंटीड मैक्सिमम टर्म्स एंड कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पर्सनली आइटम रेट एंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज फीस इन दोनों पे काम कर चुका हूं अपने जॉब टेन्योर में। सो ये सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का किस पे क्या इंप्लीकेशन होता है, वो सारा सब कुछ डिफरेंसेस एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हमें टेंडरिंग पढ़ने का कोई यूज है। ये तो अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट जो हमें डेली लाइफ में सबको यूज करने पड़ते हैं इंजीनियरिंग के बाद। आप कोई भी प्रोफाइल में हो, अगर आप साइट इंजीनियर हैं, आपका काम साइट पे काम करवाना, चेकिंग करवाना, कंक्रीट करवाना, पूरा स्टील चेक करना भी है, तो भी आपको ये बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर कैसे बनता है, परचेस ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, हम सीमेंट परचेस करते हैं, स्टील परचेस करते हैं, हम कुछ मटेरियल बहुत बल्क में परचेस करते हैं, कुछ मटेरियल हम बहुत कॉस्टली परचेस करते हैं जब हम फिनिशिंग करवाते हैं घर की। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्टली वाला मटेरियल होता है, वो कॉस्टली मटेरियल के क्या टर्म्स एंड कंडीशन से, क्या डिलीवरी शेड्यूल है, कितने टाइम में मटेरियल मेरे साइट पे अनलोड होगा, कहाँ तक वो रख के जाएगा मटेरियल, ये सारी चीजें छोटी छोटी वो हर किसी को आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रोफाइल क्या है, परचेज ऑर्डर पढ़ना। देन होता है सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट। सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट मतलब जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हमारा आरसीसी वाला अलग होता है, हमारा प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, हमारा फायर फाइटिंग वाला अलग होता है, हमारा एक्सकेवेशन वाला अलग होता है, सारे हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो कोई भी काम के लिए बहुत बार हमें भी टेंडर फ्लोट करना पड़ता है। बड़ी कंपनीज में जैसे हम लोग बैठ के पेंटिंग का टेंडर फ्लोट करते थे तो 50 सब कॉन्ट्रैक्टर आ जाते थे वो देने के लिए। तो मैं कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाऊं, कैसे उसका वर्क ऑर्डर बनाऊं। जैसे एक प्रैक्टिकल चीज जो हर कोई लाइफ में फेस करता है, क्या होता है, आपने ब्रिक वर्क का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क आप कुछ भी समझ लो, आपने किसी को एग्रीमेंट दिया कि भाई ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट, वर्क ऑर्डर साइन हो गया, 5 दिन बाद आप साइट पे आ जाना, काम स्टार्ट कर देना।
उसने ग्राउंड फ्लोर कर दिया, फर्स्ट फ्लोर कर दिया, सेकंड फ्लोर कर दिया, थर्ड फ्लोर पे वो काम ही स्टार्ट नहीं कर रहा है, आपने उसको बुलाया, वो बोल रहा है कि सर आपने मेरे को ब्रिक्स थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट करके कहाँ दी। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, वो बोल रहा है कि सर थर्ड फ्लोर तक आपने मुझे ब्रिक्स शिफ्ट करके कहाँ दिए, या टाइल्स वाला आपको बोलने लग जाएगा कि सर थर्ड फ्लोर तक आपने मुझे टाइल्स शिफ्ट करके कहाँ दी। तो आप बोलोगे यार तेरा पर स्क्वायर फीट पे काम है, योर वर्क इज ऑन पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर मीटर, व्हाई विल आई शिफ्ट द मटेरियल टू थर्ड फ्लोर, मैं क्यों तुझे मटेरियल थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट करके दूंगा। तो वो बोलेगा सर आप मेरा एग्रीमेंट पढ़ लो, मेरे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे मटेरियल शिफ्ट करना है, मैं अपना लेबर लगा के दिन का 3000 4000 रुपीज मैं क्यों खर्च करूं मटेरियल शिफ्ट करने में, आपने एग्रीमेंट में लिख के ही नहीं दिया कि मुझे मटेरियल शिफ्ट करना है, इसलिए मैंने इतना कम रेट कोट किया, मैंने ये अज्यूम किया कि आप मटेरियल शिफ्ट करवा के देंगे और मुझे पर स्क्वायर फीट पे ब्लॉक वर्क करना है। तब आप वर्क ऑर्डर खोलोगे, एग्रीमेंट खोलोगे, 4 पेज का 5 पेज का उसका वर्क ऑर्डर, उसमें आप देखोगे कि आपने मटेरियल शिफ्टिंग का कोई भी क्लॉज ऐड ही नहीं किया है कि कितना मीटर डिस्टेंस तक और कितना विड कितना हाइट तक मटेरियल उसको शिफ्ट करना है, ये सारे क्लॉजेस आपने ऐड ही नहीं किए, इसलिए आपकी 20 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग में भी उसने सेम ही रेट लगाया है। जो उसने कम रेट लगाया वो इसलिए कि उसको लगा कि 20th फ्लोर तक भी ब्रिक्स या टाइल्स आप शिफ्ट करके दोगे अपने लेबर लगा के। तो तब तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि मुझे कम रेट में टाइल्स वाला मिल गया है, मुझे कम रेट में ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क दीवार उठाने वाला मिल गया, जो भी XYZ, बट उसको मटेरियल पूरा शिफ्ट करके आपको देना पड़ रहा है। अब जब आप अनस्किल्ड लेबर या रिगर या सेमी स्किल्ड लेबर लगाओगे मटेरियल शिफ्टिंग में, दैट टाइम यू विल कम टू नो कि आपको बहुत ज्यादा डबल कॉस्टली पड़ गया उस बंदे से ब्लॉक वर्क करवाना, जस्ट बिकॉज आपको वर्क ऑर्डर टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन टेंडरिंग इसका कोई नॉलेज ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि कितने टर्म्स एंड कंडीशंस उसके नीचे ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे अराउंड 30 40 टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो छोटे से छोटा लाइट वाला या छोटे से छोटा नल लगाने वाला भी फाइनल करने के पहले सब कुछ डिस्कस किया जाता है कि इतना आपका रेट है, उसमें से कितना परसेंट आपको एडवांस पेमेंट लगेगा, कितना परसेंट मैं आपको मंथली पे करूंगा, कितना परसेंट मैं आपको काम कंप्लीट हो जाने के बाद दूंगा, कितना परसेंट पेमेंट मैं आपका होल्ड करके रखूंगा इन नियर फ्यूचर, कहाँ तक मटेरियल आपको शिफ्ट करना है, अगर इससे दूर मटेरियल की गाड़ी खाली होती है तो यहाँ तक मैं आपको शिफ्ट करके दूंगा, ये सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है बड़े प्रोजेक्ट पे। जब तक आप छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, 1 2 फ्लोर का घर बना रहे हो, तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, जैसे मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें दैट वाज G+8, मतलब उसमें 8 बिल्डिंग्स थी और 8 बिल्डिंग्स G+24 फ्लोर्स की थी एंड 3 बेसमेंट थे, तो बहुत बड़ा साइट था वो, 8 9 बिल्डिंग 25 फ्लोर्स का और सब में तीनों बेसमेंट, तो दैट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ 5 इयर्स। तो उस टाइम पे ये सब चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में, एंड इफ यू आर एमिंग टू वर्क इन बिग कंपनीज तो आपको एटलीस्ट एंटरिंग बिडिंग ये छोटा छोटा तो आना ही चाहिए, परचेज ऑर्डर, सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट, वर्क ऑर्डर, देन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम सारे देखेंगे, जो इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, इरेक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, देन सिक्योरिटी बॉन्ड्स, गारंटीज, ये सब क्या होती है, बैंक गारंटी की बहुत जरूरत पड़ती है हमें, ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होते हैं। इंडिया में चाहे इनमें से कोई सा भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, ये तो एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज हो गया, कोई भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो इंडिया में, वो इन दो चीजों पे बेस्ड होता है, आइदर वो CPWD के टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होता है या फिर वो फिडिक के टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब CPWD तो हम सब जानते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फिडिक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स। ठीक है, फ्रेंच का ये मतलब मीनिंग है, इसलिए इसमें एफ आ रहा है, जो भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स, फिडिक का फुल फॉर्म है। इन्होंने अपने अलग टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं। पहले इंडिया में सारे कॉन्ट्रैक्ट CPWD के टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलते थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्टर लॉस में कंप्लीट करके निकलते थे, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट को फेवर करते थे। फिर धीमे धीमे लोगों को ये समझ में आया कि हमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लाने की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जो अगर क्लाइंट की गलती है तो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को ब्लेम कर सके, और कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम कर सके। हर जगह क्लाइंट ही भगवान है और कॉन्ट्रैक्टर बेचारा सिर्फ घिसवाते रहेगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिडिक का बीच में इंटरवेंशन हुआ, फिडिक का धीमे धीमे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने यूज करना शुरू किया, फिर धीमे धीमे काफी गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी यूज करने लग गए फिडिक के टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे। फिडिक के अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग बुक होती है, जैसे अगर कोई आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है जो फिडिक पे बेस्ड है, उसके लिए रेड बुक है। कोई ईपीसी या टर्नकी या डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो फिडिक पे बेस्ड है, उसके लिए फिडिक सिल्वर बुक है। कंसल्टिंग इंजीनियर्स के लिए एक अलग बुक है, फिडिक ऑरेंज बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक, ऐसी येलो बुक, 5 6 बुक्स हैं। ये सब हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये जो सारी बुक्स हैं अपने आप में 500 500 पेजेस की हैं,
ये सारे पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको उतना डिटेल में जाना है वो जा सकता है। बट आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी भी रन करने के व्यू से आपको जितना नॉलेज होना चाहिए फिटिक का, उतना पूरा आई विल प्रोवाइड यू इन दिस सेशन। ये हो गए हमारे दो मेन टॉपिक्स जो हमारे दोनों 8-8-9-9 सेशन तक चलेंगे, टेंडरिंग एक्सक्यूज मी, टेंडरिंग, बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब लास्ट में जो हमारे 3-4 सेशन बचेंगे उसमें हम लोग क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब 4-5 साल का प्रोजेक्ट होता है तो क्लाइंट की तरफ से बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। कभी कभी क्लाइंट की गलती होती है, 2-2 महीने तक हमारे पास ड्राइंग नहीं आती है, हमें लैंड ही हैंडओवर नहीं किया जाता है और बाद में कॉन्ट्रैक्टर पे ब्लेम डाला जाता है कि तुमने प्रोजेक्ट डिले कर दिया। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जिन्होंने काम किया है उन्हें पता होगा। उसके लिए हम लोग लास्ट के 2-3 सेशन कॉन्ट्रेक्चुअली कैसे फाइट करना है, देखिए आप सामने से कैसे फाइट करना है किसी से, वो तो आपका लैंग्वेज का इशू है, वो तो आप सब जानते हैं, बचपन से हम लोग लड़ने के लिए ट्रेन हो रहे हैं। बट कॉन्ट्रेक्चुअली कैसे किसी से फाइट करना है कि जैसे एग्रीमेंट में ये लिखा है तो उसका ये मीनिंग है, दैट्स व्हाई आई हैव परफॉर्म लाइक दिस। जो कॉन्ट्रेक्चुअली जो लॉयर्स करते हैं वो हमें कंस्ट्रक्शन में भी उसका कुछ परसेंट करना पड़ता है। नॉट एग्जैक्टली एक लॉयर्स जो शब्दों में लड़ाई चलती है, वो वैसा हमें एज सिविल इंजीनियर्स हमें करना पड़ता है साइट पे वो सारी चीजें। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट में किसी ने कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उस वर्बल इंस्ट्रक्शन को आपको ऑन पेपर लेके आना है, वेदर यू फिल अ फॉर्म ऑफ सीवीआई और आप मेल पे मांगो, बट आपको वो चीज रिटर्न में चाहिए। नहीं तो जब आपने जैसे क्लाइंट के कहने पे कोई एक्स्ट्रा काम कर दिया, क्लाइंट के इंजीनियर आके आपको साइट पे बोल गए कि यार ये करके चले, ये भी कर देना तो अच्छा रहेगा, आपने वो चीज कर दी, जब उसका बिल लगाओगे आप तब क्लाइंट उसका बिल पास ही नहीं करेगा, वही बंदा क्लाइंट का बोलेगा कि तुम्हें किसने बोला था ये काम करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें पेपर पे लेके आना जो एक्स्ट्रा काम होता है हमारे बीओक्यू के अलावा, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं साइट पर, वो हम क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स में लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रोल ऑफ एन इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्निक्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब बिना कोर्ट कचहरी में जाए कैसे हम लोग डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं साइट पर, साइट लेवल पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं साइट लेवल पे सारे ये डिस्प्यूट रिजोल्व करने के। मेथड्स आर्बिट्रेशन, आर्बिटर कौन होता है, मेथड्स क्या क्या होती हैं आर्बिट्रेशन की, जब क्लेम होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, एक्स्ट्रा आइटम में क्या करें हम, और अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करें। ये सारा चीजें हम लोग लास्ट के 3-4 सेशन में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर कोर्स कंटेंट्स फॉर 21 डेज। अब मैं थोड़ा सा बेसिक आपको टेंडरिंग बिडिंग की जो बेसिक बेसिक मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस आज के सेशन में कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो टेंडरिंग, सबसे पहले टेंडरिंग क्या है? द वर्ड टेंडरिंग मीन्स अ डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग बिड्स, अपॉइंटिंग एक्सपर्ट्स, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स, इक्विपमेंट सप्लायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क। दैट वर्क कैन बी ऑफ एनी नेचर। जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है पेपर में ऐड आने से लेकर लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन होने तक, उस पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर को टेंडरिंग बोलते हैं। अब चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करने के लिए हो सकता है, चाहे वो कोई आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर या पीएमसी फाइनल करने के लिए होना हो सकता है, चाहे वो कोई इक्विपमेंट सप्लायर फाइनल करने के लिए हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ टावर, क्रेन, मटेरियल हॉइस्ट, ब्रेकर, चिपर, बहुत सारी मशीनें लगती हैं छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक साइट पर, वो फाइनल करने के लिए हो सकता है, कोई मटेरियल वेंडर फाइनल करने के लिए हो सकता है। जैसे 5 लोग मुझे अल्ट्राटेक दे रहे हैं तो मैं अल्ट्राटेक सीमेंट किससे लूं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वो देखने के लिए हो सकता है, या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है। कुछ भी चीज अगर मुझे फाइनल करनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री में, इवन मुझे मेरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी कोई कंपनी को हायर करना है, तो गवर्नमेंट टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी बड़ी कंपनी से टेंडरिंग बिडिंग की प्रोसेस करवाती है। टेंडरिंग बिडिंग एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं बच सकती। ठीक है, अगर आपको अपना घर भी बनवाना है घर पे, तो आप 5 कॉन्ट्रैक्टरों से बात करोगे कि मैं किससे घर बनवाऊं। ठीक है, तो ये एक, इस प्रोसेस से कोई भी नहीं बच सकता। कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट ही टेंडरिंग बिडिंग से होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर है उस पूरे प्रोसेस को हम टेंडरिंग बोलते हैं। अब टेंडर क्या होता है? ऑफर बाय वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, एक पार्टी जो दूसरे पार्टी को ऑफर करती है उसको टेंडर बोलते हैं। इन कंस्ट्रक्शन टर्म्स इट मींस एन ऑफर बाय कॉन्ट्रैक्टर टू डू अ स्पेसिफाइड वर्क इन रिटर्न फॉर अ सम ऑफ मनी। ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे G+2 फ्लोर्स का एक बंगला बनाना है, 2000 स्क्वायर फीट का है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें ये वाला स्टील होना चाहिए, ये वाला सीमेंट होना चाहिए, ये वाली स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, ये उसमें इतना स्लैब का हाइट रहेगा। आपने प्रोजेक्ट का डिटेल्स क्लाइंट ने दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें अमाउंट पूरा फिल करके देता है कि इतने अमाउंट में मैं सर आपका ये पूरा काम कर दूंगा इतने टाइम पीरियड में, उस ऑफर को टेंडर बोलते हैं।
जो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को सबमिट करता है क्लाइंट के स्पेसिफिकेशंस बताने के बाद, दैट इज नोन एज टेंडर। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, इट्स जस्ट फॉर डेमो सेशन, हम लोग ये सब ब्रीफ में देख रहे हैं ताकि हम लोग लास्ट में डाउट्स भी डिस्कस कर सके। अब जो ये बिड डॉक्यूमेंट होता है, जो ये पूरा टेंडरिंग की प्रोसेस चलती है, इतनी कितनी बड़ी है प्रोसेस कि हम लोग इतने मतलब इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले इनविटेशन फॉर बिड होता है, सेकंड उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं बिडर्स के लिए, देन कॉन्ट्रैक्टर की खुद की बिड होती है, देन देयर इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, देन लेटर टू प्रोसीड विद द वर्क, देन एग्रीमेंट फॉर्म होता है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पेशल कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेटा होता है, एंड सीओपीए प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब पूरा पेपर वर्क के। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बिड डॉक्यूमेंट के। फिर स्पेसिफिकेशंस होते हैं प्रोजेक्ट के, उसमें बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क के स्पेसिफिकेशन, प्लम्बिंग के, फायर फाइटिंग वर्क के, एडिशनल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेक्स, ये सारा बहुत सारी चीजें उसमें होती है। देन देयर आर ड्राइंग्स, लिस्ट ऑफ वेरियस ड्राइंग्स, बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर बिल्डिंग वर्क्स, बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ये सारा ड्राइंग्स अटैच्ड होती है ताकि आप अगर क्वांटिटीज मेंशन नहीं है तो वाया दोस ड्राइंग्स आप क्वांटिटीज एस्टिमेट करके आप उस हिसाब से रेट डिसाइड कर सकें एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो अब सबसे पहली चीज होती है इनविटेशन टू बिड, जो हम लोग बिड, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट क्लाइंट्स बिड इनवाइट करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को। मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे मैंने XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी है, हाउ विल आई कम टू नो कि यार मेरी सिटी में, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम वर्किंग इन उज्जैन, इंदौर, भोपाल और एनी सिटी इन मध्य प्रदेश राइट नाउ, so there is a new project, government project coming up in my city or around my city which I would like to bid for. How will I come to know about that? Seeing an ad, until and unless I will see a invitation to bid an ad, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कैसे बिड करना है, और मेरी जैसी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी नहीं पता चलेगा कि कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए बिड करना है। सो दैट इज नोन एज इन्विटेशन टू बिड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन अ बिडिंग प्रोसेस इज टू इनवाइट सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिड। आपको इनवाइट करना है लोगों को कि भाई ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है, भरो, ठीक है। दैट फर्स्ट थिंग, सर प्लीज 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 आस्क क्वेश्चंस एट द एंड। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज बोल दिया था, लास्ट 15-20 मिनट्स यू विल गेट टू आस्क इन द एंड, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अगर कुछ अर्जेंट है तो आप मैसेज में डाल सकते हैं, आई विल सी टू दैट, बाकी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे पूरा। Okay, so it is important that suppliers, contractors come to know of the demand for their goods, services and the name of the buyer. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बिड करने से पहले आई शुड कम टू नो कि विच कंपनी, किस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि भाई उनका पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हाउ दे आर, यस, इन्विटेशन टू बिड एंड इन्विटेशन टू टेंडर इज सेम। बिड मतलब जो टेंडर हम भरते हैं वो, टेंडर एंड बिड दोनों एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं, एक ही चीज को टेंडर और बिड बोलते हैं, दैट इज वन इन द सेम। इन्विटेशन टू टेंडर या इन्विटेशन टू बिड एक ही बात है। द मेथड ऑफ इन्विटेशन हैज टू बी इफेक्टिव टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स। अब ये तो बात हो गई कि मुझे ऐड देना है ताकि लोगों को पता चले कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इतना स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, इतना कॉस्टिंग आएगा, बट ऐसे कोई चीज में मुझे ऐड देना पड़ेगा जो मैक्सिमम लोगों को मैं पहुंचा सकूं। तो क्या क्या लोग यूज करते हैं? कॉमन मेथड्स फॉर इन्विटेशन टू बिड आर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, सबसे कॉमन, विच हैव अ लार्ज सर्कुलेशन। जो बड़े न्यूज़पेपर होते हैं उनमें दो, ऐसा नहीं कि क्योंकि पैसे बचाने के लिए कोई छोटे न्यूज़पेपर में दे दिया, जो लोग पढ़ते ही नहीं है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया वो। ओके, देन पब्लिकेशंस इन जनरल ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन मैगजीन्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन जनरल होते हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लोग पढ़ते हैं, उसमें आप दे सकते हो। अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, अडानी जो काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, या जो मेरी कंपनी भी थी शापुरजी पालोनजी इंटरनेशनल, बहुत सारे गल्फ में, कतार में, बहुत सारा दुबई में, बहरीन में, अलग अलग जगह प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। L&T इंटरनेशनल कर रही है प्रोजेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में। तो वो लोग को पता कैसे चला कि कोई दूसरी कंट्री में ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है और दूसरे कंट्री के लोग बैठ के भी बिड कर सकते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सो इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ब्रिंगिंग द इन्विटेशंस टू द नोटिस ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एम्बेसीज होती है फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे भेजा जाता है, वहां से फिर हमारे पास आता है। ऐसा कुछ प्रोसेस है पूरा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग का। लेटर्स टू फर्म्स हु हैव कम टू नो ऑफ द लाइकली परचेस एंड हैव मेड इंक्वायरीज। कभी कभी क्या होता है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा होता है छोटी सिटीज में या बड़ी सिटी में भी, तो कंपनीज खुद आगे रह के आपको अप्रोच करती हैं कि सर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है क्या। तो फिर आप उनको लेटर पे या ईमेल करके पूरा डिटेल पर्सनली भी भेज सकते हैं, अगर आपको ऐड नहीं निकालना है तो।
ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनविटेशन टू बिड। अब जो नोटिस निकलता है पेपर में वो एक बहुत ही छोटा सा एक ब्रीफ नोटिस होता है। द इन्विटेशंस टू बिडर्स इज अ वेरी ब्रीफ नोटिस, इट गिव्स ओनली द एसेंशियल्स ऑफ द परचेज वर्क टू बी डन। ठीक है, उसमें हम पूरे प्रोजेक्ट की रामायण नहीं लिखने बैठेंगे, बहुत छोटा सा एक ब्रीफ नोटिस, छोटा सा ऐड होता है जिसमें जितना बताया जाना चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन आ जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए, और बहुत ज्यादा डिटेल हम उसमें लिखते नहीं। सो कितने टाइप के नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। इट ऑल्सो स्टेट्स द नेचर ऑफ गुड सर्विस रिक्वायर्ड, प्लेस फ्रॉम वेयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बी परचेस्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए कि अगर इस चीज के लिए आपको बिड करना है तो जो आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स परचेस करने की जरूरत है उसका कॉस्ट क्या है, वो कहाँ पे मिलेंगे, किसी शॉप पे मिलेंगे या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेंगे या ऑनलाइन खरीदने पड़ेंगे, या बिडिंग करने की प्राइस क्या है, लास्ट डेट क्या है बिड सबमिट करने की, बिड सिक्योरिटी आपको कितना उसमें जमा करना पड़ेगा बिड भरने के लिए। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट डेटा उस प्रोजेक्ट के बारे में होता है। ये 3-4 अलग अलग फॉर्मेट में आप लोगों को बताऊंगा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के। ठीक है, अभी सबसे फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इनवाइट कर रही है, डेट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स, आइटम रेट, लमसम टेंडर्स from approved and eligible contractors for following works. Last date and time of submission 18/7/2005 के पहले टेंडर भरना है, जो भी भरना चाहता है 3 बजे के पहले। नेम ऑफ द वर्क क्या क्या है, लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, अर्नेस्ट मनी कितना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या है प्रोजेक्ट का, 15 मंथ्स में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म कितना है, ठीक है, मतलब टेंडर के जो फॉर्म भरोगे आप, निकालोगे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो उसका कितना कॉस्ट है, 1500 रुपीज लिखा है। लास्ट डेट एंड टाइम, इस डेट के बाद 11/7/2005 के बाद 4 बजे के बाद नहीं लिया जाएगा टेंडर आपसे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ इशू ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको जो ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीद सकते हैं आप जो वेबसाइट से टेंडर भरने के लिए, वो 14/7 लास्ट डेट है उसकी। अर्नेस्ट मनी शुड बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन सीकिंग इशू ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये है। अब ये थोड़ा सा छोटा सा था तो इतना ज्यादा मे भी नहीं इतना आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और अगले दो जो पेपर की कटिंग मैंने पीडीएफ बना के इसमें अटैच करी है उस पे हम लोग चलते हैं एक बार। देखिए, ये एक बड़ा नेट नोटिस इनवाइटिंग, ये एक छोटा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है और ये एक डिटेल्ड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है जो 3 पेज का है। दोनों टाइप का कैसा भी निकाल सकती है गवर्नमेंट प्राइवेट क्लाइंट, वो हम नहीं होते जज करने वाले। मतलब इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है कि सर कब छोटा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकलता है कब बड़ा निकलता है, वो तो निकालने वाले के ऊपर है कि उसको कितना डिटेल देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा तो काम है उसको भरना और कॉन्ट्रैक्ट लेना और काम एग्जीक्यूट करना। देन अभी ये देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। देखिए, एम्बेसी ऑफ नेपाल, इसका टेंडर नंबर published on 17 May 2009. Embassy of Nepal in New Delhi invites sealed tender form from eligible firms and contractors in 2-bid system in the following work. सबसे पहली चीज इन्होंने ये लिख दी 2-bid system। अब जिसको पता ही नहीं है 2-bid system क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नोटिस इनवाइटिंग टेंडर नंबर हो गया। नेम ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल पेडिस्ट्रियन पाथवे अराउंड बाउंड्री वॉल ऑफ द एम्बेसी ऑफ नेपाल एंड प्रोवाइडिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आउटडोर जिम इक्विपमेंट। लगभग उन्होंने कॉस्ट बता दी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है, अर्नेस्ट मनी जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा वो लगभग इतना है। टेंडर डॉक्यूमेंट खरीद के जो भरना पड़ता है वो 650 रुपीज के आसपास है। टाइम ऑफ कंप्लीशन 45 डेज है आपके पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, जिस दिन से आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा उस दिन से। उसके बाद भरेंगे तो आप पे थोड़ा आपके जो भी इश्यूज आ सकते हैं, पैसे काटे जा सकते हैं, एलडी क्लॉज लगाया जा सकता है, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम 31 मई 2019 पे 3 बजे तक आप बिड भर सकते हैं। एंड डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड, 2 बिड जो अलग अलग भरनी है 2 एनवेलप सिस्टम में, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड, वो दोनों साथ में ओपन करी जाएंगी 31 मई 2019 को 3:30 बजे। मतलब लास्ट डेट भी वही है, 3 बजे तक आप भर सकते हो। लास्ट 3 बजे तक सबके एनवेलप्स कलेक्ट करके 3:30 बजे सबके सामने खोला जाएगा। द एम्बेसी रिटेन्स द राइट to amend, modify, annual the notice if required. For further details ये पे आप कांटेक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जिसमें सिर्फ लास्ट डेट लिख दी, ये लिख दिया कितने अमाउंट का है, कहाँ से भरना है, वो सब लिख के छोड़ दिया।
अब ये एक डिटेल्ड टेंडर इनवाइटिंग नोटिस हम लोग पढ़ते हैं। क्लासेस के टाइम हम लोग 5-6 नोटिस इनवाइटिंग टेंडर देखेंगे, अभी हम डेमो के हिसाब से हम लोग फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इनविटेशन फॉर टेंडर्स, डिटेल्ड टेंडर नोटिस, नेम ऑफ द वर्क न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग, ये ऑनलाइन परसेंटेज रेट टेंडर, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है। आइटम रेट के नीचे जो सेकंड नंबर मैंने स्लाइड में लिखा था परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब आप नहीं भर पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ हमारा हमें नुकसान होता है, कहाँ क्लाइंट को नुकसान होता है। ये सारी चीजें अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल भी गया तो। दैट इज वाई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग ये सब चीजों से पहले। Online percentage rate tenders in B1 form are invited by the executive engineer NHM Pune Circle for the following work for contractors registered in appropriate class of the Public Health Department of Maharashtra State। इन्होंने क्लियर लिख दिया, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जो महाराष्ट्र स्टेट के इस क्लास में, जो इन्होंने यहाँ लिखा है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सेकंड एंड अबव, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे हर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो आप जितना ज्यादा बड़ा काम करते जाते हो उतना आपका लाइसेंस चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है आपका क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकंड और उससे अबव वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो इससे कम वाले हैं, जो थर्ड वाले हैं, फोर्थ कैटेगरी है, वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, उनका बिड भरने से कोई मतलब नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या क्या डिटेल इसमें लिखा हुआ है, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टेंटेटिव ये 4 करोड़ 64 लाख का प्रोजेक्ट है। अर्नेस्ट मनी इसका 1% है अप्रोक्स, यानी कि 4,64,000 अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना है हमको। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमको करना है, अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों अलग होता है, जो हम डिटेल में क्लास के टाइम डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे एक लेक्चर लेंगे हम पूरा। 23,20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो अप्लाई कर सकता है वो सेकंड एंड अबव है। टाइम लिमिट जो है इस टेंडर की 12 मंथ्स है इंक्लूडिंग मॉनसून, मतलब एग्जैक्ट 12 मंथ्स में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, चाहे कितनी ही तेज बारिश हो 3 महीने। नो प्राइस एस्केलेशन विल बी गिवन, ये भी क्लियर लिखा हुआ है। जैसे आज सीमेंट का बैग 300 का मिलता है, कल अल्ट्राटेक ने वो 500 की कर दी सीमेंट, तो आप वहां जाके ये नहीं बोल सकते कि अब ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा सर, इतना मटेरियल का रेट बढ़ गया, मुझे तो लॉस हो जाएगा। उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि नो प्राइस एस्केलेशन विल बी एंटरटेन। चाहे वो 300 की सीमेंट 250 की हो जाए तो भी यही रेट में आपको काम करके देना है, 300 की सीमेंट 500 की हो जाए तो भी आपको इसी रेट में काम करके देना है। उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी मटेरियल का रेट बढ़ने या कम होने के लिए। यहाँ उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि नो प्राइस एस्केलेशन विल बी गिवन। तो बहुत ही सोच समझ के कोट करें ऐसे टेंडर के लिए जो भी कोट कर रहा है। द कंप्लीट बिडिंग प्रोसेस विल बी ऑनलाइन ई टेंडरिंग। ऑल दी नोटिफिकेशंस इस महाराष्ट्र टेंडरिंग वेबसाइट पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। बिडिंग डॉक्यूमेंट कैन बी सीन एंड डाउनलोडेड फ्रॉम दी वेबसाइट फ्रॉम 10 AM ऑन 1 दिसंबर से चालू होंगे, और 26 दिसंबर 3 बजे तक टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। द बिड कैन बी सबमिटेड, बिड सबमिट भी ऑनलाइन ही करना है। 1 तारीख से लेकर नेक्स्ट डेट 26 तक फॉर्म मिल रहे हैं, 27 तक आप कभी भी फॉर्म भर के दे सकते हो। 15 दिसंबर को बीच में एक प्री बिड मीटिंग रखी जाएगी 12 को, वो जो लोग अटेंड करना चाहें वो लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पुणे में, पुणे कैंप में इस एड्रेस पे मीटिंग रखी जाएगी, जिसको अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है। बिड्स मस्ट बी accompanied विद ऑनलाइन पेमेंट ऑफ, अब सिर्फ बिड्स नहीं भेजना है आपको, बिड्स के साथ यू नीड टू सेंड एन ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट ऑफ आरटीजीएस और एनईएफटी सर्टिफिकेट करके देना है, विच शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ इंफ्राडेव विंग लिटिल हेल्थ मिशन एक्सवाइजेड जो भी। टेंडर फी और ईएमडी विल बी पेड वाया ऑनलाइन, ये सब आपको ऑनलाइन पे करना है और इनकी स्कैन कॉपी रिसिप्ट अटैच करना है। डिपॉजिट एक्सेम सर्टिफिकेट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड एज पर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, यही है जो भी। कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट इफ ऑफर कोटेड बाय द टेंडर इज लेस देन 10% बिलो द कॉस्ट पुट टू द टेंडर एज पर, ये इनके नॉर्म्स के हिसाब से जो कॉस्ट निकल के आ रही है उस कॉस्ट से 10% कम अगर आपकी कॉस्ट निकल के आती है तो आपको एडिशनल और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ सकता है, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये बहुत डिटेल कैलकुलेशन है, अभी आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, ये क्लास के टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना आपको और एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। बिड शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड इफ, अगर आपने ये सारे पेमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी नहीं अटैच करी तो हम बिड को इनवैलिड करके रिजेक्ट कर देंगे। टेक्निकल बिड्स विल बी ओपन ऑनलाइन
इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है 27 को ये लोग पहले टेक्निकल बिड ओपन करेंगे। द गाइडलाइंस टू डाउनलोड द टेंडर डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है इस पर्टिकुलर टेंडर की, ये पूरी यहाँ लिखी हुई है। नो पेजेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम, एडेड इन और रिप्लेस्ड इन दी टेंडर, कुछ भी आप टेंडर में अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। टेंडर्स विच डू नॉट फुलफिल ऑल और एनी ऑफ द कंडीशंस, कोई भी एक कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी टेंडर की तो आपका इनकम्प्लीट मांग के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल टेंडर्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर इज टू बी रिजर्व। बहुत सारे लोगों का मेरे पिछले टेंडरिंग के सेशन में डाउट्स आता था कि सर हम लोग बहुत सारे टेंडर भरते हैं बट हमारी कंपनी को या मुझे टेंडर मिलता ही नहीं है, वो दूसरे लोग जिनकी गवर्नमेंट से सेटिंग होती है उनको टेंडर मिल जाता है, सर उस केस में मैं क्या करूं, वो पढ़ा दो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर लिख दिया कि राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल टेंडर्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयरफॉर इज रिजर्व्ड। गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास राइट्स हैं कि वो किसी भी टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टेंडर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उनकी विल है, उनकी मर्जी है। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों आपने इस टेंडर को रिजेक्ट किया है या क्यों आपने इस टेंडर को एक्सेप्ट किया है। दिस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द टेंडर एग्रीमेंट। द सक्सेसफुल टेंडरर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड कंसर्न्ड अथॉरिटी अ वैलिड एंड कॉन्क्रीट लाइसेंस इशूड। ठीक है ये सब। राइट टू रिजेक्ट और कैंसिल एनी, फिर से लिख दिया कोई भी टेंडर हम कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। प्राइस एस्केलेशन विल नॉट बी गिवन, एक और बार उन्होंने क्लियर लिख दिया कि भैया हम कोई भी प्राइस एस्केलेशन इंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्राइस में आप कोट कर रहे हो अगर आपको मिल गया आपको उसी प्राइस में काम करना है। ये तो हो गया नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स क्या क्या होते हैं, ये सिर्फ नेम्स देख के हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें 10-15 मिनट्स डाउट्स में भी लगेंगे फिर। ठीक है, ये हो गया नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। दूसरी चीजें उसमें क्या क्या होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं बिडर के लिए कि क्या स्कोप है टेंडर का, कॉन्ट्रैक्टर की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, साइट विजिट कब कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशंस ऑन टेंडर डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज क्या क्या है, मतलब टेंडर की कौन से लैंग्वेज में भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं टेंडर के साथ, कौन सी करेंसीज में काम होगा, पेमेंट कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा, आपने इसी में देख लिया कितना डिपॉजिट करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, पेमेंट कितने टर्म्स में कितने पार्ट पार्ट में होगा, माइलस्टोन पेमेंट होगा या मंथली बिलिंग होगी या मेजरमेंट बिलिंग होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे मुझे पेमेंट मिलेगा ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उतने टाइम पीरियड तक मुझे मेरे लेबर का खर्चा चलाना पड़ता है। टेंडर सिक्योरिटी एंड वैलिडिटी, साइनिंग ऑफ टेंडर एंड सीलिंग ऑफ टेंडर, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, टेंडर ओपनिंग एंड इवैल्यूएशन, कब टेंडर ओपन होंगे, कौन से क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट करे जाएंगे, वो सारी चीजें। कंपैरिजन ऑफ टेंडर्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे क्या रहेगा, अवार्ड करने का क्राइटेरिया क्या है, एंड एम्प्लॉइज राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एडवांस पेमेंट एंड सिक्योरिटी। ये सारी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं बट ये सब थ्योरेटिकल है। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल स्टॉप करूंगा सेशन। सो जिसको भी जो भी डाउट्स हैं आज के सेशन में या टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड, नाउ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क वन बाय वन। दिस वाज अ जस्ट अ डेमो सेशन, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको देने के लिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें अपन प्रैक्टिकल कुछ करेंगे या फिर ऐसे थ्योरेटिकल तो याद रहेगा नहीं सर? नहीं, सबसे फर्स्ट चीज तो कि सारे जो लेक्चर्स हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग के अलावा जो मैं प्रेजेंटेशंस बना रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। दूसरा, मैं एक्चुअली थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते साइट पर पहुंच जाता हूँ, मेरे प्रैक्टिकल बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं हम लोग, बट प्रैक्टिकल करा जाएगा मतलब कि मैं टेंडर भर के तो नहीं दिखा सकता आपको, मतलब वो मैं कैसे करूं, वो मैं समझा नहीं प्रैक्टिकली इसमें आप क्या चाह रहे हैं। जैसे कोई देखिए सॉफ्टवेयर की क्लास होती है, जैसे एमएसपी की मैं क्लासेस लेता हूँ, प्राइमावेरा की हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर पे आपको काम करके दिखाते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, हम 4-5 केस स्टडीज करेंगे, मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा पढ़ने के लिए, उसमें आप लोग डाउट्स पूछेंगे, पूरी प्रोसेस कवर करेंगे हम लोग टेंडरिंग की। बट मैं टेंडर आपको भर के कैसे दिखाऊं, मतलब वो तो मैं, मेरा कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया ना, वो तो कोई भी नहीं लीक कर सकता। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली परचेस ऑर्डर्स दिखाऊंगा, वर्क ऑर्डर्स दिखाऊंगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्रीमेंट्स दिखाऊंगा, दूसरे साइट्स के, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली चलेंगी। बट आप बोलो कि सर टेंडर भर के ही दिखा दो, तो वो मैं कैसे टेंडर भरूंगा, मतलब मेरा मीनिंग वो नहीं था सर।
सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता होगा जो अपन जिस पे अपन प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे भरा जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना होता है, ये जानना नहीं था। इन हाँ नहीं, इस चीज के सॉफ्टवेयर नहीं होते सर। इसका कैसा है, रेट एनालिसिस और वो आप एक्सेल पे करते हैं, कुछ चीज आप वर्ड पे बनाते हैं। इसमें पूरा हमारा बस टेक्निकली पार्ट है कंस्ट्रक्शन का और कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग बिडिंग का। इसका सॉफ्टवेयर नहीं होता है अलग से कुछ। इसमें बस आपको कॉस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको टेंडर भरने का नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसमें काम करूंगा तो किसमें मेरी लायबिलिटी ज्यादा, सामने वाले की ज्यादा। वो सारा टेक्निकली खेल है इसमें पूरा, इसका कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बिड टेंडर का डिफरेंस थोड़ा बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। बिड और किस टेंडर का डिफरेंस, बिड का टेंडर का मेन थोड़ा डिफरेंस क्या है? सर, बिड और टेंडर एक ही चीज है, कहीं हम बिड बोलते हैं उसको, कहीं हम टेंडर बोलते हैं। नहीं, पेपर में एक बार टेंडर बोला रहा हूँ बोल रहे हैं, एक बार बिड बोल रहा है, डिफरेंस नहीं है सर बिड टेंडर का? नहीं, बिड एंड टेंडर एक ही बात है। जो जनरली क्या होता है, जो मतलब जो हम लोग भरते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर भरता है उसको बिड बोलते हैं, उसी को ऑफर भी बोलते हैं, उसी को टेंडर भी बोलते हैं। वो एक ही चीज के सारे सिनोनिम्स हैं। मतलब कभी कभी कहीं हम बिड यूज करते हैं मीनिंग, कहीं कहीं हम टेंडर मीनिंग यूज करते हैं, बट वो सभी एक ही चीज है। दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ओके ओके ओके, दोनों भी सेम है। यस यस यस। ओके सर। Hello, sir. Hello, यस बोलिए। sir. I'm from Prathamesh Vijay Kaliwar. I'm from Aurangabad. ओके सर ये एस्टिमेशन और टेंडरिंग में डिफरेंस है, या कुछ कुछ कंपनियों में जैसे लोग कुछ कुछ एम्प्लॉय एस्टिमेशन बोल के का वर्क करते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस आने के बाद उनका प्रमोशन होकर वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर या कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर या टेंडरिंग मैनेजर बनते हैं। तो सर ये कैसे रहता है, ऐसे बता सकते हैं क्या कुछ? हाँ हाँ, देखिए कैसा रहता है। क्वांटिटी एस्टिमेशन तो एक अलग ही चीज हो गई कि पहले वो ड्राइंग्स से सारा क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो कॉस्टिंग सीख जाते हैं तो वो रेट एनालिसिस करने लग जाते हैं। बट टेंडरिंग बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक छोटा सा पार्ट है वो, कि क्या रेट भरना है। मतलब मैं जब टेंडर भर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या रेट भरूं, बस उतना ही क्वांटिटी वाले का और रेट एनालिसिस वाले का काम रहता है। बाकी पूरा काम टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का रहता है। अब जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एमएनसी कंपनीज है इंडिया में, जो 80-90 कंपनीज है, एल&टी, टाटा, एसपीसीएल, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, पैम, एक्स वाई जेड, इतनी सारी सीबीआरई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने यहाँ। वो सारा कंपनीज में जो टेंडरिंग बिडिंग की टीम होती है 5-6 लोगों की, उसमें एक बंदा होता है जिसका काम होता है क्वांटिटीज निकालना। क्योंकि जब हम टेंडर भरते हैं तो क्लाइंट क्या करता है, हमें ड्रॉइंग्स दे देता है। वो ड्रॉइंग से कभी कभी हमें क्वांटिटीज भी निकालनी पड़ती है, फिर बैठ के रेट सोचना पड़ता है। तो उसके लिए एक बंदा साथ में रहता है, क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला। बट दैट डजंट मीन कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 लोगों के ग्रुप में एक बंदा है जो क्वांटिटीज निकालता है, वो है टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की टीम में, बट हिज मेन वर्क विल बी क्वांटिटी एस्टिमेशन ओनली। वो वर्क ऑर्डर्स नहीं बना सकता, वो सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट्स नहीं बना सकता। वो जनरली कंपनीज में कॉस्ट बचाने के लिए ये चीज करी जाती है कि एस्टिमेशन वाले को टेंडरिंग बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में बिठा देते हैं। बट वो छोटी कंपनीज में होता है, क्योंकि उसको क्वांटिटी निकालना तो आता ही है, उसको रेट भरना तो आता है। अब आपको उसको सिखाना है पूरा टेंडरिंग बिडिंग का डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। अब कुछ कंपनीज में बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होता है, तो उसके लिए उसे बिठा दिया जाता है। बट ये दोनों बहुत ही अलग प्रोफाइल है। मतलब टीम एक ही होती है। अगर 5-6 लोगों की टीम है तो उसमें एक बंदा रहेगा जो रेट्स कैलकुलेट कर रहा है, क्वांटिटीज कैलकुलेट कर रहा है। बट बाकी जो 4-5 लोगों की टीम है, दोज विल बी ऑफ प्योर टेंडरिंग बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसलिए एक दिन का सेशन मैं भी ले रहा हूँ क्वांटिटी एस्टिमेशन पे, बट उससे ज्यादा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी वो नहीं है। वो तो हमने क्वांटिटीज निकालना तो इंजीनियरिंग में पढ़ ही लिया है। ओके 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 ओके, समझ में आया सर। ओके, थैंक यू। मतलब वो बस टीम सेम रहती है, बट वो बंदे का काम क्वांटिटीज निकालना होता है ऐसा। ओके ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, आपका आवाज बहुत कट रही है। आप जरा वापस एक बार बोलेंगे? हेलो। हाँ सर, आ रहा है आवाज मेरा? हाँ अभी आ रहा है। सर एक क्वेश्चन था, एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। मेरे को 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया साइट पे, हाईवेज में साइट पर मेरे को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेनली क्वालिटी में भी है, और अभी आरएफआई वगैरह क्लोज करता हूँ। मैं अभी कंसल्टेंट में हूँ। ठीक है सर अभी मैं निकमार का जो 1 ईयर का कोर्स है, क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अभी क्या है सर, मैं सिविल लाइन में, मेरा क्या है कि मैं साइट पे नहीं रहना चाहता अब।
मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिशियल वर्क करूँ, हाँ तो उसके लिए मैं क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट में और जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का 1 ईयर का कोर्स है जो निकमा पुणे भी दे रहा है और हैदराबाद भी दे रहा है, उसके लिए जाना चाहूँ या कोई और कोर्स आप सजेस्ट करेंगे? नेक्स्ट ईयर में करना चाहता हूँ उसको। देखिए मतलब मैं आपको कॉलेज तो तब रिकमेंड करूंगा जब आप ब्रेक लेना चाहते हो, मतलब जैसे आप पार्ट टाइम वो सारे कॉलेजेस की डिग्री की उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर आप जॉब से ब्रेक लेके 2 साल के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, तो एक वो डिफरेंट बात हो गई। अगर नहीं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपने जो प्रोफाइल, अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि क्या क्या अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं और मैं कौन सा प्रोफाइल टारगेट करना चाहता हूँ। और आप जो प्रोफाइल टारगेट करना चाहते हैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्लानिंग में जाना है तो आप सबसे पहले प्लानिंग के सॉफ्टवेयर, एमएसपी, प्राइमावेरा, वो सारे सीखिए, कहीं से भी सीखिए। मतलब वो बात नहीं है कि आप प्रो ट्रेनी से या यूट्यूब से, जो भी उस डायरेक्शन में जाइए। या फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड कोर्सेज पढ़ना चालू कीजिए। क्या होता है, आपके पास अब एक्सपीरियंस हो गया। अब एक्सपीरियंस के बाद जब आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होंगे, तब आप उस डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज में एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग से घुस सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेशर से मेरा क्या मतलब है, आपको कोई पूरे प्रोजेक्ट की अकेले प्लानिंग करने के लिए नहीं दे देगा कि जस्ट बिकॉज आपको एमएसपी और प्राइमावेरा चलाना आता है, क्योंकि आप प्लानिंग तो पहली बार कर रहे हैं ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको जो, अगर आप प्लानिंग में घुसते हैं तो प्लानिंग में अगर 3 बंदे रहते हैं तो उसमें 2 बंदे आपको काम सिखाएंगे और आप प्लानिंग में घुस जाएंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। वैसे ही टेंडरिंग, बिडिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको साइट का नॉलेज हो गया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, टेंडरिंग, बिडिंग ये सारा चीजें समझ ली इससे रिलेटेड, और अगर कोई दूसरे कोर्सेज है वो कर लिए, बुक्स पढ़ ली, तो आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने रिज्यूमे में ऐड कर दिए, तब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करना चालू कर सकते हैं उन पोस्ट के लिए। ऐसा ही क्वांटिटी सर्वे का है, ऐसी सब चीज का है। बट कॉलेज में आपको तब रिकमेंड करूंगा जब आप पूरा जॉब छोड़ के जाना चाहते हो, तब वो वर्थ इट है। नहीं तो अगर पार्ट टाइम ही करना है तो फिर ये सारे दूसरे हम लोग प्लेटफॉर्म से करें, उतना अमाउंट के वो वर्थ इट नहीं है जितना पार्ट टाइम होता है। क्योंकि पार्ट टाइम के उसके सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू है जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पार्ट टाइम के सर्टिफिकेट की वैल्यू है। तो हम इतना पैसा क्यों दें मतलब। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि मेरे को मतलब ब्रेक लेना है, 1 साल का मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। तो मैं मेरा क्या सर मेन फोकस है, मैं साइट ऑफिस मतलब साइट ड्यूटी नहीं करना चाहता, मैं मतलब ऑफिशियल वर्क करना चाहता हूँ अब। तो जो क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, अभी क्या है सर, निकमा से मैं 1 ईयर का कोर्स करता हूँ तो वहां से मुझे प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा। तो मैं वही, मेरा क्वेश्चन है कि मैं साइट जॉब नहीं करना चाहता, मुझे जाना है ऑफिशियल वर्क में। तो वो जो क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, तो क्या वो मुझे करना चाहिए और वो 5 से 6 लाख मुझे वहां लगाना चाहिए? इज इट वर्थ? अब देखिए, वो मैं उतना डिटेल में अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। बट बस मैं ये बोलूंगा कि जिस हिसाब से फीस हाइक हो गया है हमारे जमाने में और अभी में, बहुत अंतर है। अब उतना वो वर्थ इट नहीं है, मतलब जितना सैलरी बढ़ते जा रही है। हम लोगों के टाइम पे कैसा था, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे जो हमको सॉफ्टवेयर सिखा दें, जो हमको गाइड कर दें कि अच्छा प्लानिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, बिलिंग क्या होता है। इसलिए मजबूरी में सब भेड़ चाल में निकमार जाते थे, ठीक है। बट आज आज से उस बात को 6-7 साल हो गए, मुझे 7-8 साल निकमार किए हुए। आज के टाइम में 3 गुना फीस हो गई है जो मैंने दी थी। तो उतना तो पैकेज ही नहीं लगता कि मेरी वो फीस रिकवर हो पाए। जितना फीस आज हो चुकी है उतना मेरा पैकेज भी तो लगना चाहिए कि मैं वो पैसे पढ़ाई के रिकवर कर पाऊं। और अब हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम काम करते करते ये कर सकते हैं। तो वो तो कॉल आपको लेना है। बट अब वो उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं बचा है, मतलब जितना हम लोगों के जमाने में था उतना तो नहीं है अब। नॉर्मली क्या है ना सर, मैं अभी कंसल्टेंट में हूँ, कॉन्ट्रैक्टर में तो मैं अपनी कंपनी में स्विच कर मतलब चेंज कर सकता था सीख सीख के। कंसल्टेंसी में क्या है सर, कंसल्टेंसी में आप चेंज नहीं कर सकते, आप इधर उधर ही रहोगे। मेन प्रॉब्लम ये नहीं आ तो रहा है। वो और सर नहीं, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास उन फील्ड्स का नॉलेज भी तो नहीं है दिखाने के लिए। अगर हाँ, आप अपने बॉस से नेगोशिएट भी करें कि सर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स में शिफ्ट कर दो, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी तो नहीं है दिखाने के लिए कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स की एबीसीडी भी आती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रोफाइल सोच लो, आपको प्लानिंग में, बिलिंग में, कॉन्ट्रैक्ट्स में जिसमें भी जाना है, और उसके सर्टिफिकेट्स लेना चालू करो, ताकि मेरा रिज्यूमे तो ऐसा बने कि मैं किसी के सामने मुंह खोल के बात कर सकूं। अगर सामने वाला मेरा आधे घंटे भी इंटरव्यू ले ले तो मेरे पास जवाब हो देने के लिए। सिर्फ बोलने से कि मेरे को प्रोफाइल स्विच करना है वो नहीं होती है कभी।
आपको आपकी कंपनी नहीं देगी तो दूसरी कंपनी देगी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे और आप उस सर्टिफिकेट्स को जस्टिफाई कर पा रहे हो इंटरव्यू में। सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू में अगर आप उन सर्टिफिकेट्स को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि हाँ यार इस बंदे को तो इस काम का एक्चुअली नॉलेज है, थ्योरेटिकली तो इस बंदे को इस काम का पूरा नॉलेज है, आपने जहां वो एक इंटरव्यू में जस्टिफाई कर दिया, बस हो गया आपका प्रोफाइल चेंज। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Anyone has any more doubts related to tendering, bidding and contracts? This course is going to be of 21 days. We are going to start soon. 1 hour daily का ये session रहेगा, आपको सारा recorded lectures भी मिलेंगे, सारा आपको जो मैं रोज PPTs बनाता हूँ वो भी मिलेगा, डाउट्स भी रोज 1-to-1 सॉल्व होगा। ये पूरा है थीम हमारे सेशन का। उसके अलावा टेक्निकल रिलेटेड किसी को कुछ डाउट पूछना है तो यू कैन आस्क, और वी आर गोइंग टू जस्ट देन वील एंड द सेशन सून। Yes, sir. If anyone has doubt, you can ask, and else I have given the link for the registration in the chat box. You can go through that. Thank you.